Assalamualaikum. Hi, how are you? Today we are starting the second topic of trigonometry, that is trigonometric ratios. Okay, you know ratios is what? Okay, so it is very simple. Now let's get started the main discussion. Okay, what are trigonometric ratios? Okay, so in this, if we talk about the ratios of the sides of a right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम लोग रेशोज़ की बात करें जो कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की, तो उनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन रेशोज़ हैं जो हम लोग इस चैप्टर में या इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, दीज आर थ्री रेशोज़। ओके, द फर्स्ट वन इज साइन थीटा, cos theta and tangent theta. Sin theta is equals to opposite over hypotenuse. Okay, this is the same hypotenuse that we discussed in our last lecture, that was Pythagoras. Okay, so hypotenuse is what? The side which is opposite to the 90 degree. Okay, so that is the hypotenuse. Okay, so I am writing just the three words, ठीक है, that you will familiar with hypotenuse. Cos is equals to adjacent upon hypotenuse, and the third one is tangent, means tangent theta, which is equals to opposite over adjacent. These are the three ratios we are going to use in this topic. Okay, first you have to know what does these sides means. ठीक है, so first of all I need to draw the figure here. This time I'm drawing here. Okay. You know only one side, that is the side which is opposite to 90 degree is hypotenuse. Okay, this is hypotenuse. You know only one side. So what the other two sides are? Opposite and adjacent. Okay, these two sides basically depends upon the other angle of a right angle. Other angle of a right angle means adjacent and opposite depends the other angle of a right angle triangle other than 90 degree. मीन्स क्या कह रहा हूँ मैं
कि ये जो एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूस हैं, ये जो दो साइड्स हैं, ये 90 डिग्री के अलावा जो दूसरे जो दो एंगल्स हैं उनमें से किसी एक एंगल की हेल्प से हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे. लेट्स सपोज यस, दिस एंगल इज गिवन टू यू and this angle is y. Okay, this angle is y degree. According to this y degree, okay, listen carefully. According to this y, if the y is given to you on the upper side, so the opposite side of the y degree is always become opposite. One more time. Opposite side of the y degree other than 90 degree is always equals to opposite, and the side beside y degree is become adjacent. Okay, one more time. जो एंगल आपको दिया हुआ होगा 90 डिग्री के अलावा, उसकी जो अपोजिट साइड होगी दैट इज़ दिस, वो अपोजिट कहलाएगी, और उसके साथ जो बराबर वाली साइड है वो आपके पास हमेशा एडजेसेंट कहलाएगी. ओके, एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको इसी ट्रायंगल के साथ. अगर मैं एक ट्रायंगल दोबारा से इतनी ही ड्रॉ करूँ लाइक दिस. ये 90 डिग्री है. अब जो मैं एंगल है मैं वो यहाँ बनाता हूँ, और ये एंगल लेट सपोज करें y है. आपको मालूम है फर्स्ट जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होगी दैट इज हाइपोटेन्यूस. ओके, आफ्टर लेबलिंग दी hypotenuse, now check out which angle is given to you. So in this diagram number 2, x is given to you, so x is the degree, x degree is given to you. So according to this x degree, the opposite of this x, the opposite of this x degree, the line, oh sorry, not a line, the side which is opposite to the x degree other than 90 degree is always what? Hypotenuse. Not, oh sorry, hypotenuse, opposite. Opposite. Okay, means जो भी एंगल 90 डिग्री के अलावा राइट एंगल में दिया हुआ होगा, उस एंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो साइड उस एंगल के अपोजिट होगी वो हमेशा अपोजिट कहलाएगी, और जो उसके बिल्कुल बराबर में है वो आपके पास एडजेसेंट कहलाएगी. वन मोर टाइम. द साइड which is facing the x degree, or the side which is opposite to the x degree other than the 90 degree. X should not be 90 degree. If the x is 90 degree, then the opposite of that side or that x degree would be okay, hypotenuse. But इधर यहाँ पे scenario change है. X is not equal to 90 degree because 90 degree is here. In triangle only 190 degree is possible. ठीक है. So the other is x, and this x is not equal to 90 degree, and this angle is given to you, and according to this angle, the side, this basically this is the opposite to this x, so this will become opposite, and the side which is beside this x degree, that will become adjacent. तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर इस तरीके से इसको देखेंगे आप. अब यहाँ पर जो थीटा होता है that is this is the angle. जो भी ट्रायंगल का एंगल दिया हुआ होगा आपको यहाँ पर उसको लिखना पड़ेगा. ठीक है. ओके, 90 डिग्री जो होता है वो हम लोग मोस्टली लिखते नहीं है इससे, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ आपको मालूम होती हैं जो कि कांस्टेंट 0 में आती है. बट ये रेशोज़ जो हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में
मोस्टली यूज़ करते हैं, और ये जो रेशोज़ हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही यूज़ होते हैं। अब इन रेशोज़ को यूज़ करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इस रेशोज़ के ज़रिए हम लोग साइड भी फाइंड कर सकते हैं और एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके साइड्स के लिए और एंगल फाइंड करने के लिए दो प्रिंसिपल हैं, ठीक है। तो नीचे अगर मैं आपको जस्ट यहाँ पे बिलो द डायग्राम फॉर साइड्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपको कभी साइड फाइंड करना हो तो उसके लिए ज़रूरी ये है, जब आपको ये रेशो यूज़ करना पड़ेगा, ट्रायंगल मस्ट बी 90 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर नॉट मस्ट बी, ट्रायंगल बेसिकली हैज़ एटलीस्ट वन एंगल ऑफ 90, एक एंगल जो होगा वो 90 का होना चाहिए। सो मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो हम जस्ट राइटिंग राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल। एंड द सेकंड इज कि अगर आपको साइड फाइंड करनी होगी, वन एंगल अदर देन 90 degree must given, and the third one is one side must be given, ठीक है। So these are the three principles that you need to remember when you have to use these ratios. Okay, the first one is कि आपके पास ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल होना चाहिए। द सेकंड वन इज़ 90 डिग्री के अलावा एक एंगल गिवन होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ उसके साथ एक साइड गिवन होनी चाहिए, मस्ट एक साइड गिवन होनी चाहिए। ओके, फॉर एंगल मतलब आपको ट्रायंगल का एंगल फाइंड करना होगा अदर देन 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री तो मालूम होता क्या है, बट उसके अलावा हम लोग दूसरे जो दो एंगल हैं उसमें से कोई एक एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहला जो होगा वो बिल्कुल सेम राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। सेकंड, इसमें एंगल ही फाइंड करना है तो एंगल की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट टू साइड्स आपको होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम टू sides of a triangle must be known, ठीक है। दो साइड्स आपको ट्रायंगल की नोन होनी चाहिए। अगर ये नोन होंगी तो हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से। सो हम इसकी अब एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से ये रेशियोज यूज़ करेंगे।